اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میرے دوستوں، بھائیوں، بچوں، آج میں آپ سے معمول سے ہٹ کے ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی ٹورسٹ آتا ہے تو وہ ایک اپنا سفر نامہ لکھتا ہے، اس ملک کے حالات دیکھتا ہے اور دوسرے ممالک سے کمپیئر کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی اوپینین دیتا ہے۔ اوپینین سفر نامے کی شکل میں انٹرنیشنل پریس میں چھپتی ہے، بعض لوگ بکس میں بھی چھاپ لیتے ہیں، تو وہ ایک پیس آف سورس آف گائیڈنس ہوتا ہے اس نیشن کے لیے کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں اور ان کو درست کر کے رائٹ ڈائریکشن میں اپنے ملک کو لے جانا، یہی ایک کام ہوتا ہے۔ اس سے متعلقہ آج یہ ویڈیو ہے کہ ایک ڈاکٹر تھا فرانسس پرنیوٹر، یہ فرانس کا رہنے والا تھا۔ اس نے 1658 to 1670 یعنی 12 سال اس نے انڈیا میں گزارے۔ یہ زمانہ تھا شاہ جہان کا، بادشاہ شاہ جہان کا۔ یہ ڈاکٹر تھا، میڈیکلی یعنی طبیب تھا، اور اس کے پاس یہ چانس تھا کہ بڑی بڑی پرسنالٹی سے یہ ملتا تھا، تو اس کے ملنے کے لیے تمام بادشاہوں کے، وزیروں کے، گورنروں کے دروازے کھلے تھے۔ وہ فریکوینٹلی ان کو بلاتے تھے، بلکہ ایک دفعہ تو یہ بادشاہ اورنگزیب کے ساتھ اس نے سفر کیا، لاہور کا اور کشمیر میں بھمبر کا، تو اس نے اپنے مشاہدات کیے، پھر اور جگہ بھی مشاہدات کرتا رہا۔ تو یہ اورنگزیب کے زمانے میں جس نے دیکھا کہ اورنگزیب نے اپنے باپ کو، شاہ جہان کو نظر بند کر دیا، اور یہ سیاسی رقابت جاری تھی کہ اس کے جو بھائی تھے دارا، شجاع اور مراد، وہ بھی تخت نشینی چاہتے تھے، تو اس لیے یہ ایک رفٹ چل رہی تھی۔ تو اس کا مقابلہ اورنگزیب نے ان کا کیا اپنے کتھ اینڈ کن سے، اور ان سب کو اس نے زیر کر لیا، اور اس لیے بادشاہ کو بھی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا شاید نیوٹرل نہیں ہے، تو اس کو بھی نظر بند کر دیا۔ تو یہ تو ایک سیاسی اس وقت کی جو بات تھی اس نے بتائی ہے، کی ہے۔ دوسرا اس نے کہا جب آن ریٹرن فرام انڈیا تو اس نے ایک اپنا سفر نامہ جاری کیا، اور اس نے آبزرویشن جو لگائی وہ اس کی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس نے بھی یہ کنکلیوڈ کیا تھا کہ 350 سال میں بھی چیزیں نہیں چینج ہوئیں، وہ چیزیں وہ سسٹم، وہ خرابیاں اب بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ ایگری کریں گے جیسے میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلی جو بات نوٹ کی اور جو پروجیکٹ کی وہ یہ تھی کہ یہاں پاکستان میں معاشرہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، یا اس وقت انڈیا میں معاشرہ 2 حصوں میں بٹا ہوا، تو وہی پاکستان بھی اس وقت پارٹ آف انڈیا ہی تھا، سب کانٹیننٹ اکٹھا ہی تھا۔ تو جب علیحدہ ہوئے تو وہی لوگ، وہی حالات۔ تو اس نے کہا یہ مثلا آج بھی ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کہ معاشرہ اسی طرح بٹا ہوا ہے، یا تو کوئی بہت زیادہ امیر ہے اور یا پھر بہت ہی غریب ہے۔ جو امیر ہے وہ بنگلوز میں رہتا ہے، اور اس کے پاس درجنوں ملازم ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، اور گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ اور اب تو اور خرابی ڈیولپ ہو گئی اس کے زیادہ، یعنی کہ بجائے کہ اس کو کٹ ڈاؤن کیا جاتا کچھ ایسا سسٹم آتا، بلکہ اب یہ ہو گیا کہ امیر لوگوں نے فارم ہاؤس بنانے کا، پہلے تو کنالوں میں تھے، اب ایکڑوں میں بن گئے۔ تو غریب کا جو ہے جھونپڑیوں میں رہتا ہے، اس کو شاید ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، ایک وقت کے کھانے سے وہ محروم رہتا ہے۔ یہ ایک ڈسپیرٹی شو کی ہے ان ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ان دا کنٹری۔ مڈل جو ہے درجہ، یعنی درمیانہ درجہ جو ہے،
वाइट कॉलर जिसे कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है ही नहीं। बल्कि अब दूसरा वो उसने जो नोट की, क्योंकि बादशाहों के दरबारों में रहता था, सुनता था, देखता था, वो कहता जी यहाँ फ्लैटरी बड़ी कॉमन है, यानी खुशामद बड़ी है। काम उसमें कुछ भी हो, लेकिन काम लेने के लिए खुशामद करते हैं ये लोग, इनकी आदत है। वो कहता है जी मैं डॉक्टर था, और मेरे पास जो लोग आते थे, बजाय कि वो अपना दुख बताते कि जी मुझे ये बीमारी है, ये सबसे पहले कहते डॉक्टर साहब क्या बात है आपकी, आप तो एरिस्टोटल लगते हैं, आप तो सकरात लगते हैं, आप तो आज के बू अली सीना हैं। तो ये उसने बात नोट की, और ये देखें आज भी दफातर में यही होता है। प्रेसिडेंट की, वज़ीर आज़म की, छोटे अफसरों की वो खुशामद होती है, और खुशामद में वो लोग जो मिलने के लिए आते थे वो घंटों ज़ाया करते हैं। ये लोग, ये कौम घंटों ज़ाया करती है अपना खुशामद में, जो कि वेरी नॉन प्रोडक्टिव चीज़ है। तो उस वक़्त का कंप्लेंट सिस्टम उसने शेयर किया। वो कहता है कंप्लेंट सिस्टम ये है कि जो मिलने आता था वो एप्लीकेशन अपनी जेब में रखता था, वो जेब उसकी कंप्लेंट बॉक्स था। तो इससे ये हुआ कि वो अपना ग्रीवेंसेस वो हल कराने के लिए ऐसा करता था, फ्लैटरी का सहारा लेता था। फिर शॉपिंग सेंटर्स के मतलब उसने डिस्कस किया कि बड़ा अजीब ये इलाका है सब कॉन्टिनेंट का, कि यहाँ जो शॉपिंग सेंटर्स हैं वो किसी तरतीब से नहीं बने हुए। ये नहीं है कि एक बुक्स की मार्केट हो, एक गोश्त की मार्केट हो, एक मिठाई की मार्केट हो, एक कपड़े की मार्केट हो, बल्कि ये सारी मार्केटें एक दूसरे में अमर्ज हुई हैं। एक दुकान से उठता है बंदा तो दूसरी दुकान में चला जाता है, उसमें जाके देखता है। तो मतलब कोई इस तरह का सिस्टम नहीं पाया जाता कि जिससे ये एक खूबसूरत सेंटर नज़र आए। फिर क्या उसने बताया, ये जो यही चीज़ें आज पाकिस्तान में भी हो रही हैं कि प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है, हर दुकानदार का अपना रेट है, और दुकानदार बार्गेनिंग करते हुए गाहक और दुकानदार आपस में झगड़ते हैं। आज भी यही हो रहा है। और फिर जो सफाई का मेयार दिखाया वो बहुत कहता है गंदा है। वो ये कहता है कि फल भी महंगे हैं और साथ साथ सड़े हुए भी होते हैं, और उस पर मक्खियाँ बैठ रही होती हैं। फिर है कि फ़िश मार्केट, स्वीट शॉप्स पे मक्खियों की यलगार होती है, आज भी हो रही है। और मीट शॉप, जो गोश्त की शॉप है, कहता है उस पर तो जो मरने के करीब वो जानवर होता है उसको ज़िबा कर देते हैं, और जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें डंकी और डॉग का गोश्त खिलाया जाता है। फिर नेक्स्ट उसने बताया पॉइंट कि शराब पर पाबंदी है, तो लेकिन शराब मिलती है, वो हसाइयों के ज़रिए उनके पास आ जाती है, और वो अंदर खाने सब कुछ हो रहा है, शराब पी जाती है। आगे है कि पानी का पीने का कोई सिस्टम अच्छा नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, आज भी वही है। आज भी पानी जो है नाकस है, बीमारियां पैदा हो रही हैं। एग्रीकल्चर का बताया कि एग्रीकल्चर ओल्ड सिस्टम से इन्वोग है, कि ये वो जो है पुराना सिस्टम की वजह से ना तो उसकी पैदावार बढ़ती है, वो थोड़ी पैदावार होती है, और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती। हमारे नेबर में देख लें, चाइना ने कितनी तरक्की की है, उसने फ्रूट में नई नई किस्में लगा दी, और अनाज उनका एक एकड़ में 100 मन के करीब होता है, और हमारा जो है 20 मन गंदम होती है। तो फिर आगे उसने कहा जी ये एग्रीकल्चर सिस्टम में नदियों की, नालों की सफाई नहीं होती, बाल सफाई नहीं होती। गरीब काश्तकार कहता है इसका फ़ायदा अमीरों को होगा, जागीरदारों को होगा, और जागीरदार समझता है कि इसका फ़ायदा गरीबों को होगा। होता ये है कि कोई भी सफाई नहीं करता। फिर जो बहुत बड़ी सिस्टम उसने दिखाई गई है कि ये कारीगर जो होते हैं उसको कोई इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जाता। वो बेचारा ऐसे ही रिगड़ के मामूली सी डे टू हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजार देता है, और उसकी इतनी तरक्की मुल्क में नहीं होती क्योंकि कारीगर की इज्जत नहीं है। फिर जो है फ्लड सिस्टम, कहता है ये फ्लड्स को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं करते, और फसलें तबाह हो जाती हैं, बागात तबाह हो जाते हैं, मकान तबाह हो जाते हैं, और अपना ब्रिज तबाह हो जाते हैं, रेलवे ट्रैक तबाह हो जाता है, और फिर अगले साल फिर उसी तरह हो जाता है काम, जो अगर कोई थोड़ा बहुत किया भी हो। तो दूसरा एक सिस्टम नेक्स्ट बयान किया उसने कि ये मनी जो है ना, लोग इन्वेस्ट नहीं करते बिजनेस में, बल्कि वो मनी को छुपा के रखते हैं,
बल्कि बिल्कुल सही कहा उसने। अब हमारे केपी के दोस्त हमारे जो हैं वो क्या करते हैं, रज़ाइयों में मनी रखते हैं और बैंक में नहीं रखते टैक्स से बचने के लिए। फिर जो बताया गया कि ये लोगों की आदत देखें, शौक़ देखें कैसा है। घर में भूख है, खाना मिल नहीं रहा और औरतों पर सोने के जेवरात चढ़ाए जाते हैं और वो इतने महंगे हैं सोना, और वो सोना उसको ज़रूर पहनाते हैं शक भूखे रहें। ये भी एक सिस्टम की खराबी है, ये हो रहा है। फिर आखिर में सबसे जो आखिरी पॉइंट उसने शेयर किया है वो कहता है एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव है, वो काबिलियत नहीं पैदा करता, वो ऐसा ही पैदा करता है फजूल बंदे, आइडल बंदे पैदा करता है। भाई ये सारे पॉइंट्स आज भी मौजूद हैं। आज भी हमारा पाकिस्तान 350 साल पहले वाला पाकिस्तान है। मकसद ये है कि हो क्यों रहा ये, इसलिए कि हमारे पास प्लानिंग नहीं है। हमारा प्लानिंग कमीशन डिपार्टमेंट जो है ना उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो फजूल है, वो काम ही कोई नहीं कर रहा था। अगर कोई काम कर रहा होता, पॉलिटिकल विल होती, तो ये खराबियाँ जो उसने 350 साल पहले बताई हैं वो आज ना होती। तो हम हर एक का फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके मतलब सोचें और अपने आप को संवारें, अपने सिस्टम को संवारें। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना पॉलिटिकल सिस्टम संवारे, रीवैम्प करे और लोगों की पाकिस्तान को आलमी मेयार के अगर करीब नहीं तो कम से कम दरमियाने दर्जे में ही आ जाए। लेकिन अब हम जिस भी लिस्ट में देखते हैं पाकिस्तान का नंबर बॉटम पे होता है। खुदा रहा कोई इसके मतलब सोचे। इस रिपोर्ट को देखते हुए जो मैंने बयान की है, मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सियासी रहनुमाओं से और प्लानिंग करने वालों से कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे ये तमाम जो पॉइंटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें अगर ज़्यादा नहीं तो 50% को तो मीट कर लें, उसको तो ख़त्म कर दें, ताकि ये पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर हो और पाकिस्तान के लोग भी खुशहाल हों। अल्लाह आपका हामी नासर।